মোৰ পিছফালে থকা ছবিখনে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি উলট পালট কৰি দিব পাৰে। নীলা ৰঙৰ চাৰ্ট পিন্ধি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বাৰে বাৰে নমস্কাৰ জনোৱা ভংগীমাটো আৰু তেওঁৰ কাষতে থকা উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ মুখৰ হাঁহিটো অৰ্থাৎ হালধীয়া ৰঙৰ তেওঁৰ চাৰ্টটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি হয়তো চিৰদিনৰ বাবে সলনি কৰি দিব পাৰে। আজিৰ পৰা কিছু মাহ পূৰ্বে গুৱাহাটীত ৰচনা কৰা হৈছিল এখন বিশেষ গ্ৰন্থ অৰ্থাৎ ৰাজনীতিৰ এখন বিশেষ গ্ৰন্থ। ৰাজনীতিৰ বিশেষ গ্ৰন্থৰ এটা নতুন পৃষ্ঠা এতিয়া ৰচনা কৰা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। এখন সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত পুনৰ নতুন এটা পৃষ্ঠা অংকন কৰিব বিচৰা হৈছে। হয়তো উদ্ধৱ ঠাকৰে যিকোনো সময়তে শিৱসেনাৰ পৰা আহি আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য হৈ পৰিব পাৰে, আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন নেতা হৈ পৰিব পাৰে। যিজন উদ্ধৱ ঠাকৰেক কোৱা হয় শিৱসেনাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা, তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা হৈ পৰিব পাৰে। এখন সংবাদ মেল, এটা ছবি, এটা নমস্কাৰ আৰু এটা হাঁহিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি যিকোনো মুহূৰ্ততে উলট পালট কৰি তুলিব পাৰে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, ভগৱন্ত মানক লগত লৈ উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সংবাদ মেল। আপুনি হয়তো কোনোদিন কোনোকালে কল্পনা নকৰা এখন বিশেষ সংবাদ মেল, য'ত ভগৱন্ত মান আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগত একেলগে বহিছে উদ্ধৱ ঠাকৰে। হঠাৎ আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে সংবাদ মেল সম্বোধন উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ। উদ্ধৱ ঠাকৰে এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে। আম আদমি পাৰ্টিত চামিল হ'ব নেকি উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ শিৱসেনা? এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে শিৱসেনা এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে চামিল হৈ পৰিব নেকি? শেহতীয়াকৈ ন্যায়িক যুঁজত নিজৰ দলীয় প্ৰতীকো হেৰুৱাইছে উদ্ধৱ ঠাকৰে। একনাথ সিন্ধে লাভ কৰিছে সেই দলীয় প্ৰতীক, অৰ্থাৎ শিৱসেনা দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছিল। উদ্ধৱ ঠাকৰে সকলো ফালে এতিয়া পৰাজিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একনাথ সিন্ধেৰ শিৱসেনাই লাভ কৰিছিল শিৱসেনাৰ প্ৰতীক চিহ্ন, আৰু তাৰ পিছত যেন উদ্ধৱ ঠাকৰে এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাৰি হাৰি পুনৰ জিকিব বিচাৰিছে আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে তেওঁ এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ সৈতে একেলগে বহিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, ভগৱন্ত মানক লগত লৈ উদ্ধৱ ঠাকৰে এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে। সংবাদ মেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভগৱন্ত মনে যিটো সময়ত হাঁহি আছে, ঠিক একেটা সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ মুখতো এটা ৰহস্যৰ হাঁহি। ঠিক একেটা সময়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নীলা ৰঙৰ চাৰ্ট এটা পিন্ধি বাৰে বাৰে ৰাইজক নমস্কাৰ জনাইছে, সাংবাদিকক নমস্কাৰ জনাইছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আম আদমি পাৰ্টিক আজি কংগ্ৰেছতকৈ অধিক শক্তিশালী বুলি একাংশই মন্তব্য কৰে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যত লাহে লাহে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আটাইতকৈ পুৰণা দল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যিমান মানুহৰ আস্থা আছে, সেই একেই আস্থা আৰু বিশ্বাস থকাৰ পিছতো আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰতি মানুহৰ লাহে লাহে বিশ্বাস বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেই সময়তে শিৱসেনাৰ এইগৰাকী নেতা উদ্ধৱ ঠাকৰে তেওঁলোকৰ লগত বহিছে, তেওঁলোকৰ লগত সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে, আৰু এই সংবাদ মেলে এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। হয়তো শিৱসেনা ত্যাগ কৰি উদ্ধৱ ঠাকৰে আহিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজলৈ। আৰু যদি আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজলৈ আহে, যদি আম আদমি পাৰ্টিৰ তেওঁ এজন নেতা হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ বাবে হৈ পৰিব ই আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ। কাৰণ যিগৰাকী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ পিতৃৰ এটা সপোন দেখিছিল শিৱসেনা নিৰ্মাণ কৰা, সেইগৰাকী পিতৃৰ সপোন ত্যাগ কৰি এতিয়া পুত্ৰ আহিব বিচাৰিছে অন্য এটা দললৈ, যদিহে এই কথা সঁচা হয়। আৰু যদি এই কথা সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰাজনীতিত যিকোনো সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনাই সংঘটিত হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ বাবে আচৰিত হ'বলগীয়া, চিন্তিত হ'বলগীয়া একোৱেই নাথাকে। शुरू करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। शुरू करो। आज मुझे खुशी है, अरविंद जी आए हैं, मान साहब आए हैं, आपके राज्यसभा के मेंबर जी, इनका मैं स्वागत कर रहा हूं। और क्यों आए अलग बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे, और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं, वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए।
खैर मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूँगा, विनती करता हूँ कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताइए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया और उनके साथ काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था। खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा। इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार, आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोज़गारी से बुरी तरह से त्रस्त है। पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया है कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। मैं मान साहब से निवेदन करूंगा वो भी 2 शब्द करें। आवाज आएगी। आज उद्धव जी से मिलने का मौका मिला, पूरे परिवार में बैठने का मौका मिला। पंजाब और महाराष्ट्र का बहुत गहरा नाता है। आज़ादी के संग्राम में भगत सिंह पंजाब से थे तो राजगुरु पूना से थे, तो वो इकट्ठे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर सूरमाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको कदाचित ये चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या ना, उनको चिंता ये थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो इस देश की आज़ादी बहुत महंगी मिली है, वो भीख में नहीं मिली। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे जो पुरखे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं। तो उस आज़ादी को कायम रखना भी हमारा फ़र्ज बनता है। वो तो अपनी कुर्बानियाँ देकर चले गए, हम उस आज़ादी को कायम रखने के लिए अगर इकट्ठे हो जाए तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर के चूल्हे को जो है